Hey guys, what's up? I'm Priyanka and welcome back to the Fanspire. We are doing a special series in fact, called the Fanspire Spotlight, where we'll be talking to coaches and players of IWL clubs from across the country. We can't wait for you guys to hear their story, share in their passion, and also ultimately show your support for your local clubs in your states. Today, we have with us Annie, who is the coach and manager of Amma FC, which is in Nagpur. And I'd like to welcome her onto the show. Hello, hi Annie, welcome to the show. So, previously, you also mentioned that you were a footballer and you did play states and nationals. And, I would like to know your journey also as a footballer first, and how was it for you? Yeah, thank you, Priyanka, for sharing this platform to me. First of all, to thank you to my God, my parents, my friends, and my family members. Obviously, my coaches, school time coaches, teachers, and physical education teachers, and my friends. Uh, First of all, I'll share my journey. I'll start my journey, football journey. I'll start my playing career in 7th standard. I'm from Nagpur, Maharashtra. My school name is St. Anthony High School. Basically, I'm studying in Hindi medium school, Hindi family background. I'm Catholic, Roman Catholic. I love football. My grandparents playing hockey. So I'm that बोलते हैं ना blood में रहता है आता है कहीं ना कहीं से करके. So that in my blood also makes up that one. So my football career I'm starting in 7th standard, my school career. Then after starting basically then playing slowly play the state, then national, school nationals, then state, then Maharashtra level, then and recently 2010 and 11 I participate in Brazil homeless football club. So I'll play in my career is very horrible. Sometimes parents are supporting, sometimes not, but by God grace, in my case, I'm very happy. I'm very lucky that my father every time is supporting me. You go, you do that, you do this, you do this. No, you can. वो बोलते हैं ना कि नहीं तू लड़का है तो तू लड़की है तो नहीं कर पाएगी. मेरे केस में ऐसा नहीं था. आई एम लकी. मैं लकी मानती हूँ उस चीज में आपको कि अपने आप को कि मैं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. सम फुटबॉल स्टार्ट करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई जब मेरे स्कूल में मैं एक अकेली गर्ल थी. आई एम अलोन गर्ल कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल. सो फिर मेरे फिजिकल एजुकेशन टीचर ने देखा, मिस हिलेरी मैम ने देखा कि शी इज गर्ल इज वेरी इंथुजियास्टिक, बहुत एकदम टॉमबॉय जैसी रहती है, करती है बिंदास, लड़कों के बीच में घुस जाती है खेलने का, ये कि सबको मारपीट करके अरे लड़के लोग मेरे को चिढ़ाने का, मैं तू नहीं खेल सकती है, नहीं देखो नहीं तू लड़की है तू कैसा खेलेगी, एमिली चुप रहे मैं खेल के दिखाती हूँ, अगर नहीं खेली तो तू फिर मेरे को बोलने का. तो अदर गर्ल ऐसा मैंने अपना करियर स्टार्ट किया. तो मुझे देखकर मेरा स्कूल का टीम बना फुटबॉल का, सेंट एंथनी का गर्ल्स. एट दैट टाइम वी आर अ चैंपियन. That time St. Anthony girls are football team district team champion school level. So I am very happy कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है. तो मुझे देखते हुए काफी लड़कियां मेरे स्कूल की उन्होंने पार्टिसिपेट किया. टीचर्स का, पेरेंट्स का सपोर्ट मिलते गया. ऐसा करते करते मैं आगे गई. तो मैं चाहती थी कि आफ्टर 10th मैंने जैसा किया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे ये स्टॉप नहीं होना है करके. तो मैंने अपने फुटबॉल करियर और आगे बढ़ाने के लिए मैंने फिजिकल एजुकेशन का स्टडी किया. उसमें भी मैंने करंटली मैं खेलते रही, आगे तक खेलते रही. मैं चलते फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे ही नहीं खेलना है, मुझे आगे गर्ल्स को भी खिलाना है. फॉर एग्जाम्पल मुंबई पूना गर्ल्स दे आर रॉकिंग इन फुटबॉल, उनका सामना कोई नहीं कर सकता है. तो मेरे अंदर एक जिद आ गई थी, वाई दिस गर्ल, हम क्यों नहीं कर सकते, वो भी इंसान है हम भी इंसान है, वो भी लड़कियां हम भी लड़कियां, मेरे दर की बच्चियां क्यों नहीं कर सकती. तो वो जिद में मैंने अपना नागपुर में क्लब स्टार्ट किया 2016 में, अम्मा एफसी क्लब करके स्टार्ट किया. तो धीरे धीरे मेरे साथ मेरे जूनियर गर्ल्स सीनियर गर्ल्स जो है वो जुड़ते गई. ऐसा करके हमने अम्मा एफसी को फॉर्म किया. इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे अम्मा एफसी को फॉर्म करने का मेरा भाई का रहा है. मुझे मेरा छोटा भाई है लियोनार्ड, उसने, और मेरा कजन है उसने, और बाकी भी जो मेरी जूनियर गर्ल्स थी, मेरे बच्चियां थी साथ में जो खेलती थी, उनका भी वो भी बोलते थे मैम दीदी बाकी लड़कियां ऐसा खेलती है तो हम क्यों नहीं खेल सकते, हमको क्यों नहीं. तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीज मुझे वो चुभती थी कि वाई दिस बॉम्बे पूना गर्ल्स आर देयर प्लेइंग, उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो मेरे इधर की बच्चियों को क्यों नहीं मिल सकता है. तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में एनडीएफए में, नागपुर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन में मेरे प्रेसिडेंट से बात की, मिस्टर हरीश ओरा जो है, इकबाल कश्मीरी है, और भी लोग हैं, उनसे मैंने स्टार्ट किया कि सर वाई दिस गर्ल आर स्टॉपिंग द प्लेइंग फुटबॉल, हम क्यों नहीं, जैसा बॉम्बे पूना आगे बढ़ रहा है वैसा हम क्यों नहीं.
तो दे आर सेइंग नहीं, फुटबॉल को कोई स्कोप नहीं, वुमेन्स को कोई स्कोप नहीं, तो हम आगे बढ़ के क्या करेंगे, फिर भी अगर तू बोल रही है तुझे करना है, तेरे में जिद है, तो हम तेरा साथ देंगे, पर काम आगे तुझे करना है। तो ये जर्नी मैंने अकेले ही एनडीएफए में स्टार्ट की हूँ, बहुत सारे मैन के बीच में एक वुमेन का काम करना, यानी एक अलग बात रहती है। बहुत सारे वो बोलते हैं ना, वो कहावत जो बोलते हैं कि जब एक वुमेन आगे बढ़ती है तो उसको पीछे खींचा जाता है, तो इट इज वेरी ट्रू प्रियंका, इसमें कोई दो राह नहीं है। ये मेरी जर्नी में ये मेरे साथ हुआ है, मैंने किया है ये चीज, पर मैंने गिव अप नहीं किया है ये चीज को। मैंने, मेरे अंदर एक जिद थी कि मेरी बच्चियों को, मेरी जो फ्रेंड्स है, जूनियर्स है, मेरे टीममेट्स है, उनको भी ये प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए करके। तो ये जिद से मैंने एनडीएफए के साथ काम करना शुरू करते करते मैंने बीपा में लास्ट 6-7 ईयर से महाराष्ट्र टीम नेशनल जूनियर सीनियर टीम मैनेजर, नेशनल टीम फुटबॉल टीम के साथ जा जाके मैंने काम किया है उनके साथ। तो ये देखते हुए मैंने हर चीज का मुझे एक्सपीरियंस आया, तो मैंने कहा कि नागपुर में भी टैलेंट कम नहीं है, बस ये है कि बच्चियों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो मेरे अंदर वो एक जिद आई कि मुझे कुछ ना कुछ करना है इनके लिए, डजंट मैटर कि वो उस चीज से मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दूसरों को देने में खुशी होती है। तो वो मेरी एक जिद थी जो मैंने अम्मा एफसी को 2016 में फाउंड किया। उसके लिए मुझे बहुत सारे हर्डल्स पार करने पड़े, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा। वो बोलते हैं ना, जब हम स्टेप्स चलना स्टार्ट करते हैं तो कई बार गिरते हैं, पर जब हम फाइनली हमारी जो मंजिल रहती है वहां पहुंच जाते हैं तो काफी लोग फिर हमसे मिलने आते हैं। पर जब हमारा जो रास्ता रहता है जो चलने का, वो काफी मुश्किल रहता है, उस टाइम सिर्फ लोग हमें बातें सुना के जाते हैं कि तू क्या कर रही है, लोग हमारे ऊपर हंसते हैं। तो इट इज ट्रू, मेरी लाइफ में हुआ है, पर मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल माय गॉड मेरे जो, मैं गॉड में बहुत बिलीव करती हूँ तो वो थे, तो मैंने सिर्फ प्रेयर किया और काम किया, ये दो चीज करते हुए मैं आगे बढ़ी। तो आज अम्मा एफसी IWL में आज तक नागपुर में बॉयज का टीम नहीं पहुंचा है, वहां तक हीरो आइडल जो बोलते हैं वहां तक नहीं, पर वुमेन्स एक पहुंचा है। ये सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये चीज के लिए। और ये चीज भी बोल दूं कि इसमें मेरा, मुझे जो दिस ईयर मुझे सपोर्ट मिला है, माय वन कलीग, माय फ्रेंड, गुड फ्रेंड बॉम्बे के मिस्टर डेरिल सैमुअल, उनका भी एक एकेडमी है सैमुअल एकेडमी। तो उन्होंने मुझे काफी हद सपोर्ट किया, मुझे गाइड किया और मुझे हेल्प किया, तो थैंक टू डेरिल ऑल्सो। और इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट होते गई, और आज आई एम अम्मा एफसी as coach and manager and founder, so I'll feel very proud, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा बोलते हुए कि अम्मा एफसी में मैं हूँ और अम्मा एफसी को मैंने फाउंड किया है। Yes, I would like to congratulate you. You know, you have, you, as you told us, it's not been easy for you, and this is what exactly we want to highlight. We want to tell everyone else in India that it's not easy for a woman to firstly play football, to start a club, to compete at such a high level, and you have actually come here and, you know, overcome so many hardships to make sure that the girls can play. In spite of, you know, your career, you have said that you had to face a lot of struggle there as well. So, you know, firstly, thank you for giving the girls a platform. So, I want to ask you, so in 2016, they started the IWL for women. It is supposed to be the professional league in our country. But do you think that women's football has improved ever since this league has started? It is true, Priyanka. The women football is improvement very a lot. 100 to in a 80-85% their benefit is there for women. ये हुआ है, ये इसमें कोई दो राह नहीं है कि 2016 से जो IWL स्टार्ट हुआ है तो उसमें कि वुमेन्स को काफी प्लेटफॉर्म मिला है, गर्ल्स को काफी प्लेटफॉर्म मिला है, काफी आगे बढ़े हैं वो लोग। और वुमेन्स जो फुटबॉल इंडिया का जो बोला जा रहा है वो काफी हद तक आगे बढ़ा है। जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल अभी जो यूरो कप हुआ है उसमें जो मेंस का टीम तो जो था, तो उसमें जो परफॉर्मेंस, मेसी का जो परफॉर्मेंस रहा है उसको लेके लोगों ने इतनी सराहना की है, इतना ये बताया है कि मेसी ने ऐसा खेला है। तो आई थिंक कि हम फॉरेन वालों को क्यों फॉलो करते हैं, हम फॉरेन की ही क्यों बड़ाई करते हैं, वाई हमारे इंडिया के प्लेयर्स भी है, इंडियन वुमेन्स टीम है, बॉयज मेंस वुमेन्स दोनों का टीम है। हम उन मुझे शायद ऐसा डाउट है कि बहुत से लोग हमारी इंडियन टीम के वुमेन्स के और मेंस के टीम को कोई ज्यादा प्लेयर्स के नाम किसी को पता नहीं होंगे जितने के फॉरेन प्लेयर्स के नाम। तो एक ये छोटी सी बात मुझे कहीं ना कहीं चुभती है, मैंने अपने स्टेटस पे भी रखा था ये चीज अभी
4-5 डेज पहले कि वाई मेसी को सपोर्ट करते हैं। इंडिया के बारे में कोई जानता है, इंडियन फुटबॉल के बारे में कोई जानता है, इंडियन वुमेन्स के बारे में कोई जानता है, वो फुटबॉलर को कोई पहचानता है, वाई? तो अगर अब तो वुमेन्स ने अपने आप को प्रूव किया है ये चीज में, इंडियन फुटबॉल टीम के वुमेन्स की जो टीम है उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। एएफसी कप में उन्होंने जीता है, फाइनल मैचेस जीता है जिस जूनियर टीम ने जाके। तो वुमेन्स फुटबॉल जो 2016 आईडब्ल्यूएल को के द्वारा लोगों को काफी प्लेटफॉर्म मिला है वुमेन्स को, वो लोग काफी इम्प्रूव हुआ, उनके गेम में इम्प्रूवमेंट आया है, काफी वुमेन्स फुटबॉल में कॉम्पिटिशन्स आए हैं, काफी हद तक इंडियन टीम को नए नए यंग स्टार्स वुमेन्स प्लेयर्स मिल रहे हैं। इसके तो ये काफी एक बेनिफिट रहा है चीज ये स्टार्ट करने से आईडब्ल्यूएल का। True. Also, we were looking at your page on Instagram, Amma FC, and we found pictures where your team is posing with trophies, medals. The girls are smiling, and so can you tell us a little more about what all your team Amma FC has achieved so far? अम्मा एफसी फ्रॉम नागपुर टीम, ये जो नागपुर का एक टीम है हमारा, मैंने इसमें सीनियर जूनियर सब बच्चों को मिला है। इसमें हर एज ग्रुप के बच्चे हमारे अम्मा एफसी में, हम लोग हर एज ग्रुप को ट्रेनिंग देते हैं। पर लास्ट 4-5 ईयर से अम्मा एफसी यहाँ पे नितिन गडकरी जी जो है वो एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं खासदार करके, तो उसमें 3 ईयर से अम्मा एफसी चैंपियन रह रहा है, फर्स्ट प्लेस रह रहा है, विनर अप रह रहा है वो। उसमें हमारी काफी गर्ल्स सब पार्टिसिपेट करती है, अपना पूरा दिलो जान से खेलती है बच्चियां। तो मुझे देख के बहुत खुश होती है कि मैंने कुछ तो किया है उन लोगों के लिए, कुछ तो मिल रहा है उन लोगों को ये चीज से। मुझे अम्मा एफसी को यहाँ तक ही सीमित नहीं रखना है, मुझे गर्ल्स को सिर्फ मेरे क्लब का नाम होना चाहिए या अम्मा एफसी का नाम होना चाहिए, मुझे यहाँ तक नहीं, मुझे मेरी गर्ल्स को क्या बेनिफिट हो रहा है, अम्मा एफसी में खेलने से गर्ल्स को क्या बेनिफिट हो रहा है उनके जॉब करियर पर, उनके स्टडी करियर पे। ये मेरा मोटिव है कि मैं अम्मा एफसी के द्वारा जो मेरी प्लेयर्स है, गर्ल्स है, उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी हो या स्टडी हो, वो मैं कैसे प्रोवाइड करा। तो मैं सिर्फ फुटबॉल तक सीमित नहीं हूँ, मेरे क्लब का काम आगे बच्चों को जॉब भी, मेरा ड्रीम है ये ड्रीम। और मैं प्रियंका आने वाले कुछ 2-3 साल में ये भी आपको देखने मिलेगा कि अम्मा एफसी ने काफी गर्ल्स वुमेन्स को उनका प्लेटफॉर्म दिया है, उनको रोजगार दिया है, उनको स्टडी में हेल्प किया है। ये आने वाले टाइम में आप देखोगे, मैं बोलना नहीं चाहूंगी इस बारे में, मैं बस प्रूव करना चाहूंगी इस बारे में। और जहां तक अम्मा एफसी की बात है कि अम्मा एफसी एक ऐसा क्लब है जहां हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि मुझे यही बच्ची चाहिए या मुझे वही बच्ची चाहिए। डजेंट मैटर, आपको खेलना नहीं आता है, आप आओ, हम आपको सिखाएंगे, हम बैठे ही सिखाने के लिए, हम आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं यहाँ पे। पर बाय गॉड ग्रेस मेरी टीम में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि गर्ल्स हमारी सीनियर जूनियर सब एक साथ, सब एक बॉन्डिंग होकर सब एक साथ काम करती है। डजेंट मैटर अगर मैं उनको आधी रात को भी काम बोलूंगी कॉल करके कि बेटा हमको खेलना है, कल हमारा मैच है, डजेंट मैटर हम प्रैक्टिस पे है या नहीं है, पर वो अपना 100% देते हैं। और प्रियंका ऐसा होता है, बाय गॉड ग्रेस, ये मिरेकल बोला जा सकता है मैच के साथ, कि वो जहाँ टूर्नामेंट के लिए जाते हैं वो उनको जीत के ही आना है, वो जीत के ही आते हैं। वो ऐसा, उनके पास कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं रहता है कि मैम हमारी प्रैक्टिस नहीं है या हम फिट नहीं है। वो एक उनमें एक प्रकार की ऐसी जिद है उनके अंदर कि वो अगर ग्राउंड पे उतर रहे ना तो उनको उनका 100% ही देना। ये मैं उनके ऊपर प्रेशराइज नहीं करती हूँ या मैं उनको बोलती नहीं हूँ कि नहीं, वो उनके अंदर खुद से आता है, क्योंकि उन्होंने मेरी जर्नी देखा है, उन्होंने देखा है कि अम्मा एफसी को यहाँ तक लाने के लिए मैंने क्या किया है। तो वो मुझे यही बोलते हैं, मैम या दीदी जो भी मुझे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं आपने हम पे ट्रस्ट किया है, आपने हमको बोला है तो आप हमको हम पे ट्रस्ट करते हो ना, आप हमको फील्ड में जाने दो, हमको जो करना है हम वो करेंगे। और उसका रिजल्ट ये होता है कि बिना ट्रॉफी के वो वापस नहीं आते हैं। Yes. Obviously, congratulations to all your girls, and of course, you as well. And I'd like to thank you exactly for encouraging girls around Nagpur, around your locality to come and play. Yeah. So there is one more question that I wanted to ask you. Before COVID, when you all used to play matches, did people come and cheer for the girls, like in the stands? Did they shout support? Did you see things like that happening for Amma FC? It is true, but some people are coming. Those are interesting in football. They are coming and they are supporting us, like my teammates, my friends, my school friend, my college friends, my colleague, and even my member also. They are coming and they are supporting us. But एक बहुत अच्छी चीज पूछी है प्रियंका आपने मुझे कोविड की, तो मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अभी जो आईडब्ल्यूएल को जाने के पहले मुझे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जो रिगार्डिंग ग्राउंड के,
इस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि नागपुर इज वेरी हॉरेबल बिफोर IWL, बहुत हॉरेबल चल रहा था, एकदम पिक इस पे था नागपुर कोविड में। तो फिर भी मेरी गर्ल्स आई, उन्होंने प्रैक्टिस किया, हमको ग्राउंड का प्रॉब्लम जा रहा था। तो मैं कहाँ नहीं गई, मैं आपको बताऊंगी। मैं ग्राउंड के लिए, हेल्प के लिए पॉलिटिशियंस के पास गई, लोकल पीपल्स के पास गई, जहां जहां तक जा सकती थी मैं वहां तक गई। पर लोगों का यही था कि हम कोविड में आपको ग्राउंड कैसे दे। और हम जहाँ खेलते थे वो रेलवे का ग्राउंड है, जहाँ मैं क्लब चलाती हूँ। रेलवे का ग्राउंड है, वहां पे परमिशन लेके करनी पड़ती है। तो वहां परमिशन लेने के बाद भी वो लोगों ने हमको निकाल दिया। बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, फिर भी मेरी गर्ल्स ने, अम्मा FC की जो गर्ल्स है, उन्होंने गिव अप नहीं किया। प्रियंका, यू कांट इमेजिन, हमको छोटी सी भी जहाँ जगह मिलती थी, हम वहां पे अपना वार्म अप स्टार्ट करते थे, वहां पे अपना बॉल टचेस स्टार्ट करते थे। ऐसी छोटी छोटी चीजों को, हडल्स को हमने पार करके हमने IWL तक हम लोग पहुंचे हैं। और वहां पे मेरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इसके लिए मैं खुश हूँ। एक माइनस पॉइंट हमारे पास ये था कि हमारे पास ग्राउंड नहीं था बिकॉज कोविड के। तो इस रीजन से मैं किसी को बोल भी नहीं पा रही थी कि प्लीज मुझे जगह दो। पर मुझे जहां तक जाना था, मैंने वहां तक, वो लेवल तक गई। मैं सुनील केदार तक गई हूँ। मैंने उनसे ग्राउंड के लिए परमिशन मांगा, उन्होंने कहा कि मैं दूंगा आपको, पर कोविड के चलते हुए, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहते हुए, तो मैं उनको ज्यादा नहीं बोल पाई। फिर भी उन्होंने दिया, जहां सपोर्ट करना था वहां किया। एसोसिएशन ने भी जहां मुझे सपोर्ट करना था, DFM में मिस्टर हरीश ओरा, इकबाल कश्मीरी, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। पर ये जो बोलते हैं ना कि वुमेन्स फुटबॉल को उस नजर से नहीं देखा जाता, ये चीज सबसे बुरी है। ये नागपुर में होता है, नागपुर में होता है कि जिस तरह मेंस फुटबॉल को जो प्लेटफॉर्म मिलता है, वो वुमेन्स को नहीं मिलता है। पर ये चीज मैंने उनकी गलत ठहराई है। आज अम्मा FC को लोग बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। अगर अम्मा FC का नाम सुनते हैं, अम्मा FC की गर्ल्स को देखते हैं, तो उनको बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है। और मेरे में एक जिद थी प्रियंका की, मुझे ये चीज बताना है लोगों को कि वुमेन्स, एक लड़की भी क्लब चला सकती है, एक लड़की लड़कियों को आगे बढ़ा सकती है। डजेंट मैटर कि उसके पास पैसा हो या ना हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो या ना हो। एक बोलते हैं ना, जिद बोलते हैं, जो जिद, वो जिद अगर आप में अंदर डालो तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलती है। इट इज ट्रू, in my case. Yeah. Thank you very much for sharing your story. I hope people who watch this video can actually, learn about the difficulties the women have to face and what you have faced, and obviously, start supporting the clubs in their localities, start following the clubs here. Yes, I would like to say that was such a great discussion. You all have, taken us right to the roots of where you all started and the difficulties. And I hope people watching this actually realize how difficult it is, whether you are in Mumbai, whether you're in Nagpur, whether any other state in India. It is always so difficult for us girls to actually come out there and play. And really, congrats to Sunita and Annie. You all have been phenomenal in actually bringing this out. So, before we end, my last question to Annie would be, this series is called The Spotlight because we want to put Indian women's football in the spotlight. How do you think that we can improve and actually, get more attention on Indian women's football in India? लगता है कि अगर हमको इंडिया इंडिया टीम में हमारे वुमेन्स फुटबॉल को आगे बढ़ना चाहिए, तो हमें हमारे ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में सिचुएशन क्या रहेगी ये किसी को भी नहीं पता है। पर मुझे ऐसा लगता है वुमेन्स फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम ग्रास रूट लेवल से मेहनत करेंगे, तो आने वाले टाइम में वुमेन्स फुटबॉल टॉप पे रहेगा करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, हम ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, छोटी छोटी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और जो जो छुपा हुआ टैलेंट है जो इंडिया में, जो बच्चियां हैं हर स्टेट में, हर जगह पर, सिटीज में, वहां अगर हम छोटा छोटा बेबी लीग करें, छोटे छोटे टूर्नामेंट्स करें जूनियर सीनियर्स के लिए, तो काफी हमको हेल्प मिलेगी। आने वाले टाइम में जो इंडियन फुटबॉल है वुमेन्स का, तो हमको किसी की वेट नहीं करना पड़ेगा कि हम कौन सी वुमेन को कहाँ से लेके आए या कौन सी वुमेन का सिलेक्शन करे, कौन सी गर्ल का। तो आने वाले टाइम में इंडियन फुटबॉल में ऐसा कंपटीशन रहना चाहिए कि गर्ल्स को लेने के लिए लोग एक बार सोचे कि फुटबॉल में गर्ल्स को, ये जो गर्ल्स वुमेन्स फुटबॉल है, उनके लिए एक ऐसा मुश्किल बन जाना चाहिए कि हम कितनी टीम को सेलेक्ट करें नेशनल टीम के लिए, और कितने लोगों को सेलेक्ट करें और कितने के लिए, कितनों को ना करें करके। मेरा एक ड्रीम है कि आने वाले समय में जो छोटी छोटी जो सिटीज है, गांव है, वहां पे वुमेन्स
वुमेन्स का जो टीम है वो एक उभर के आए, ना कि ग्रास रूट लेवल से बल्कि और बड़े लेवल पे। स्टार्टिंग तो ग्रास रूट लेवल से ही होनी चाहिए, पर आने वाला जो समय है वुमेन्स फुटबॉल के लिए एक उभरता हुआ टाइम आना चाहिए कि लोग वुमेन्स को मेंस के लेवल में देखा। ये सिर्फ बोलने के लिए कहावत है कि वुमेन्स को मेंस के लेवल में देखा जाता है फुटबॉल में, ये 100% सही है, ये मैं नहीं मानती हूँ कि ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में गर्ल्स इतना खेले कि लोग मेंस को भूल के वुमेन्स फुटबॉल, वुमेन्स की टीम पे, इंडिया की टीम पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करें। Okay, yes. Thank you so much for sharing your dream. I hope it comes true. And Shruti, do you have any final questions for either of Annie or Sunita today? Before asking any questions, I'm really happy that these two have joined in and they've shared their experiences, because this is going to be a motivation for the other girls who are just trying to enter into the football field. So I'm really happy to see them, and their motivation and passion is so high. I would like to congratulate and wish both of them very good luck. Thank you so much for joining in. Thank you, Priyanka. Yes, thank you, Shruti, and thank you, Annie and Sunita. All the very best for your club. Also, all those following us and who have watched this video, do check them out on Instagram. Do follow them, and of course, do subscribe to the Fanspire as well. Like, share it, and of course, keep encouraging girls to get out there and play football. We'll be back with more episodes of this series. Till then, stay tuned and thank you.